So now we are going towards the most important part of this discussion, जो सबसे गहरा और सबसे important हिस्सा है, which is bad company worst moon combination. तो ये तीन usual suspects तो हैं, चौथा है जिसको मैं बहुत भयंकर मानता हूँ, which is moon Venus, and we'll talk about how to start with it. So Tushar, next slide. Let's start. I want you to take the lead on this one. Okay. Yeah, much has been made out of the Moon Rahu dynamic, and it's actually very difficult, as we have already said in the disclaimer that it's not funny in the amount of pain that an inflicted or a suffering moon can face. Moon Rahu is actually it's nightmare, walking nightmares. मतलब ऐसे fears जिनकी कोई वजूद नहीं है. They keep playing at breathtaking speed. You're not even watching a movie. It's like a kaleidoscope of horrors. Smokes and mirrors चल रहा है, and there is no sense of clarity as to real क्या है. So, which is why, yeah, it's very difficult to talk about it also. Moon Rahu. The Moon Rahu also means that the mother has had a very terrible experience. I think birth के समय में Moon and Rahu होना मतलब ये कि the mother had a lot of lived in a very dangerous space और कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से वो बच्चे ने वो fears inherit कर लिए हैं. Which means कि reality और illusion अक्सर blurred हो जाती है और illusory fears अक्सर reality बन जाते हैं. As they say that कि whatever you are thinking, they become your reality. So यहाँ पे तो fears आपकी reality बनना शुरू हो जाते हैं. The worst nightmares often come true with Moon Rahu. They can be manipulative, and this was very, in spite of me being a Moon Rahu in the first, I know मुझे जब विजय सर ने सबसे पहले बोला था कि Moon Rahu people are very vicious to their own, I thought ये कैसी बात बोल रहे हैं, but ये सच है. I don't know for what reason, anytime the moon is in pain, like in a Rahu case, it wants to hurt its own, as if to take revenge on what nurtured it in the first place. Moon Rahu, it's always looking, क्योंकि इतना भ्रम है तो इसीलिए वो कोई गुरु या कोई गाइड या कोई सारथी ढूंढते रहते हैं कि कोई उनको रास्ता बता दे, क्योंकि कहीं से कोई माइंड में इंस्टाग्राम उठाएंगे आप वहां भटक जाओगे. मतलब एवरीवेयर देयर इज जस्ट माया ऑन स्टेरॉइड्स. आपने कहा ना कि एम्पैथी ऑन स्टेरॉइड्स, दिस इज माया ऑन स्टेरॉइड्स. मतलब फुल ब्लोन माया और एकदम तेजी से चल रही है. तो इट्स लाइक माइंड कंप्लीटली सोक्ड अप इन दैट. जोकर का एग्जांपल यहाँ पे इमेजेस के फॉर्म में बना है. वेयरवुल्फ, यस, ये सब इमेजरी है, देखने में बड़ी वो लगती है, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस इट्स a lot of madness. And if this madness does not have a clear sense of direction, then it is bound to completely hurt the individual and everybody around them. Moon Rahu is, yeah, it's pretty hard. So it often helps कि आपके पास एक कोई creative pursuit हो. आप जिमिंग जाना चाहते हैं, स्पोर्टिंग करना चाहते हैं, भक्ति में जाना चाहते हैं, जिस भी जाए, लेकिन उसको बार बार करते रहें. Repetition is important because most of the Moon Rahu people often have extreme levels of anxiety, attention deficit, hyperactivity disorder मैंने देखा है, which means कि बच्चे को attention का बहुत problem रहता है, इसलिए repetition पे ध्यान दें. Learning maths helps. I don't know how, but it helps because the Moon Rahu needs some structure. तो इस वो रेमेडीज में बात करेंगे. नहीं तुषार भाई, आपने बोला ना मैथ्स सी, व्हाट आई हैव सीन इज दैट राहु को ना फोकस चाहिए. उसको फोकस, अगर आप अपने राहु को फोकस दोगे, वेरी गुड पॉइंट विशाल, वेरी गुड पॉइंट. आगे बढ़ाएगा. आई टॉकिंग ऑफ मून राहु, अ कैट इन्वेडेड माय हाउस. आई डोंट नो इफ इट्स अ साइन और समथिंग, बट yeah, so Vishal, if you could just recap. Vishal will come to this point. It's a very good point. मैं ये पिछला 2-3 मिनट का मिस कर दिया. अच्छा, तुषार आप बोल रहे थे. मैं ये कह रहा था कि मून राहु के केस में एक हेल्दी ऑब्सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्सेशन तो है,
ये इंसान बिना ऑब्सेशन के कोई काम ही नहीं कर सकता, इसको ऑब्सेशन चाहिए। अब ये जिस घर में प्लेसमेंट होगा उसका वही ऑब्सेशन बन जाएगा। जैसे गांधी के 11th हाउस में मून राहु था, तो पब्लिक लाइफ बिकेम हिज मैंने टेंथ ऑब्सेशन। हाउस टेंथ हाउस अच्छा, काश ये 11th हाउस में होता, वो पैसा एक बना लेता। एक चार्ट में मैंने 11th में देखा था। नहीं 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 नहीं। Okay, okay, 10th house. So the public life became his obsession, and he was a vastly public. And people have, Sir has his own theory about what it did to the people Yeah. because of Moon Rahu. And yes, it needs an obsession. तो आप किसी भी तरीके से कुछ रेपिटेशन करिए। मार्शल आर्ट्स में जा रहे हैं तो मार्शल आर्ट्स में एक ही स्टेप बार बार करने से आपका माइंड स्टेबलाइज हो जाता है। और जैसे मैथमेटिक्स की बात, बिकॉज द राहु नीड स्ट्रक्चर, otherwise Rahu is going to scare the hell out of your moon, is going to scare the hell out of your moon. The moon does not know what is real anymore. It's just baffled. It's just a lot of fog. कई बार I have seen myself in complete fog. I don't know, जैसे आप कलीडोस्कोप चल रहा है, it's not a very happy place, but it also means कि अगर इसको अच्छा डायरेक्शन दे देंगे तो उस ऑब्सेशन से आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली, डायरेक्ट समुराई बन सकते हो ब्रो, मतलब ऐसा सीन है। विशाल, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट, प्लीज। वही मेरा पॉइंट वही है। राहु के साथ ये है कि राहु को फोकस चाहिए। अगर आपने राहु को फोकस नहीं दिया तो वो आपको इतना घुमाएगा आ जाता है। लेकिन अगर आपने उसको फोकस दे दिया तो राहु वो देगा जो कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। So to top on this one, राहु का अगर हम स्टोरी पढ़ें, ओके, so when अमृत मंथन में मोहिनी had charmed everybody और सब उसी को ताड़ रहे थे, he was the only one who had his eye fixed on the अमृत का घड़ा, nobody else. तो बंदे का फोकस देखो आप, तो राहु, मैंने देखा राहु जो बंदा फोकस रहेगा उसको रिवॉर्ड करेगा और जो आदमी बिखर जाएगा उसको वो पनिश करेगा। करेक्ट सर। एक और बताता हूं, आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट मून राहु, लेकिन जस्ट अ लिटिल सेगवे। महादशा, राहु की महादशा मैंने ये देखा है, अगर बच्चों को एजुकेशन एज में राहु की महादशा आ जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देम, बिकॉज कंटिन्यूसली यू ट्राई टू लर्न। और अगर आपने अपने बच्चे को राहु महादशा में किसी सुध में लगा दिया, then he will take it all the way till the end of the महादशा। अदरवाइज वो रेबल विदाउट अ कॉज बन जाएगा। ये हेडेक भी बहुत बड़ा होता है जवान बच्चे का राहु, बिकॉज राहु इज द प्लैनेट ऑफ रेबेलियन। तो घर में रोज नई क्रांति होती है। करेक्ट। इफ अ टीनेज बच्चा गेट्स इनटू अ राहु दशा, इट्स नॉट इजी। बट हाँ, अगर आपने उसका पैशन पहचान के लगा दिया तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट। Another thing I would like to say is कि राहु का फंडा क्या है, राहु बूस्ट एंड करप्ट, ये दो काम करता है। जिस भी प्लेनेट के साथ बैठ गया, राहु इज लाइक अ ड्रग डीलर, जिसके साथ बैठ गया उसको कोकेन सुखा देता है। अब वो प्लेनेट स्यापा डाल देगा पूरे चार्ट में। ओनली एक्सेप्शन इज जुपिटर। बाकी ये जिस प्लेनेट के साथ में बैठेगा कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। सर अपने जो भी मदर के साथ बैठा है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। मदर के साथ की जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली बहुत ही रूटेड स्पेस पे ही, जहाँ जो जन्म हुआ है ना, वहां से करप्ट हो गई है सर, वहां पे ही विष फैल गया है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ दूध में ही पॉइजन आ गया है। तो बहुत बहुत डीप वर्क जरूरी है। आपकी मदर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप नहीं होगा सही, तो मून राहु एक्सैसरबेट करेगा। तो जिनके भी चार्ट में मून राहु दिखता है, प्लीज गो बैक and sort things out with your mother, because and if your mother is poisonous, you might want to cut back. Yes, also you can also have a toxic mother. Yes, it could have been. Yes. Or you know who makes the worst kind of mother? A woman with a moon rahu. Moon rahu is the werewolf. वेयरवुल्फ का लेजेंड ये है, ये पूर्णमासी की रात को आता था एंड ही वुड किल दोज हु वुड लव हिम। राहु सन विल हर्ट अदर पीपल, राहु मून विल ईट इट्स ओन, इट्स द डिवावरिंग मदर। अपनों को हर्ट करते हैं ये लोग until unless they realize कि क्या करना है। उसके बाद में इन लोगों को मैंने क्या देखा है, ये they want somebody to take control of their life, especially women. If you are a woman, my sympathies if you have a moon rahu.
men still have it easy. Women, it can be very very dangerous. उनको कोई चाहिए जो बताता रहे अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। और सबसे ज्यादा कल्ट फॉलोअर्स ये लोग बनते हैं। You go to a cult, you will find list of Moon Rahu, तो बाबा जी जो कह रहे हैं हम कर देंगे, because they don't want to take that. They want somebody else to fix their. Right, तुषार? सही बात। और क्योंकि जहां भी सर ये समझ ही combo नहीं आ बैठा रहा होगा है। वो समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब completely cluelessness हो चुकी है। It's an absurd space. so they want somebody else to do their run their life. कोई don't हाथ want to पकड़ ले, take क्योंकि आपको खुद से तो आपका माइंड अब मतलब और वो इमोशनल डिपेंडेंस बहुत हो जाती है दूसरों, हो जाती है, which is never good, which is never good. और ये कोई भी आप लाइफ कोचिंग प्रोग्राम शुरू करो, सबसे पहले राहु मून वाली महिलाएं आएंगी, कोई करके देख लो, आई कैन बेट $1 million on that. It would be women, and typically women with moon rahu, that too in Cancer 5. Oh my God. किसी कल्ट में चले जाओ, इनकी फौज खड़ी होती है, ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधभक्त। उसके बाद में दिस इज द क्रेजी गर्लफ्रेंड एंड द क्रेजी मदर। ये या तो बहुत कंट्रोलिंग हो जाएंगी या बहुत स्पॉइलिंग हो जाएंगी। दे कैन प्ले अ धृतराष्ट्र और अ हिरण्यकश्यप, स्पेशली द विमेन। और ये वो महिलाएं होती हैं जो सबसे ज्यादा ब्लॉक करी जाती हैं व्हाट्सएप पे जिंदगी से। पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि इनका हिस्टीरिया नहीं झेल पाते, इनके डिपेंडेंस नहीं झेल पाते। एंड सॉरी, प्लीज डोंट फील बैड इफ समबडी हैज इट, आई एम जस्ट गिविंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है आपके चार्ट में 10 और कॉम्बिनेशन व्हिच कैन सपोर्ट दैट, बट लाइक वी सेड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डार्क साइड। उसके बाद में ड्रग्स एंड अल्कोहल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये अपनी दुनिया में जीते हैं। जोकर मूवी, कर्क राशि, मून राहु, गारंटी। गांजा वांजा मार के बंदा मार दिया, फिर उस पर जाकर के पूरे शहर में दंगे फैला दिए। दैट्स अ मून राहु गॉन बैड। और इनकी क्या मेंटल हॉरर मूवी चलती रहती है, अरे ये हो गया, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक नेगेटिव ट्रेन ऑफ थॉट इनकी भाग जाती है। So, and they can be irrationally distressed. तो और वर्स्ट के सिनेरियो के एक्सपर्ट हैं ये। मून राहु इज इलॉजिकल एक्सपर्ट इज वर्स्ट के सिनेरियो। तो इनको मैं एक मंत्र देता हूं, नॉट टू चांट बट टू एनालाइज कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो इस चीज की भी अभी भूकंप आ जाए हम सारे मर जाए, बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। तो जो इम्प्रॉबेबल चीज है उसको लेके भी हो करते रहना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद दिस। दूसरे, लाइक तुषार सेड, बेस्ट थिंग, एंड आई गॉट दिस टिप फ्रॉम तुषार, फुल मार्क्स टू हिम, यू नीड अ हेल्दी ऑब्सेशन। खुद को किसी चीज में इतना डुबो दो कि आपको दिक्कत नहीं रहे। तीसरी चीज, अगर इफ यू फाइंड अ मून राहु पर्सन हु हैज अ गुड सन और हु हैज अ गुड मार्स, प्लीज एम्पावर देयर सन एंड मार्स। Jupiter is number 3, but bad moon, if you want to help him, you strengthen the sun and Mars. Imagine a बड़ी डरी हुई mother with a gangster sitting next to him, her, और आपने उसके भाई और पति को बंदूक पकड़ा दी, वो सडनली कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसको। And these people should take plenty of sunlight, अंधेरे में ना बैठिए। कितनी भी गर्मी हो, कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लेनी ही लेनी है आपने। ये जादू होता है जब बगैर धूप के ज्यादा चलने पर। ओके, एंड नो वन एल्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड फॉर गॉड्स सेक, टेक साइकेट्रिक हेल्प इफ यू हैव टू। आई हैव टेकन साइकेट्रिक, आई हैव बीन इनटू डिप्रेशन। मेरा लाइफ में कमबैक शुरू हुआ एक 7 रुपए की एंटी डिप्रेशन। विशाल, आई हैव डन दैट। ओके, तुषार, तुम तो खुद ही हीलर हो, so you have done the whole hog. So moon rahu people, they suffer from most psychological problems. Correct me if I'm wrong, Vishal. Yes, absolutely. You work with a lot of people. और मजेदार बात है, पता है सर, when did I do it? I have a Taurus moon, but I did it when my Rahu Antardasha came.
अब इसमें राहु मून, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वर्शिप माँ काली. दैट इज व्हाई आई पुट इट देयर. ओके, सो काली इज द रूलर ऑफ राहु. राहु इज राक्षस का सिर, वो हाथ में पकड़ के खड़ी हुई है, और चंद्रमा नीचे ढा रखा है ना अपने ओनर के साथ में, द ग्रैंड डैडी. So this is what Rahu does to your Chandrama. So when you worship this image, everything calms down. मून भी शांत हो जाएगा, राहु भी शांत हो जाएगा. माँ की कृपा, बाबा की कृपा बहुत 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 आवश्यक. पानी पीजिए काली के सर, पानी पानी पानी. Keep lots of water because Rahu is air and it keeps taking the fluid out of your moon. Keep drinking a lot of water like sir is doing right now. मेरा पानी कहाँ गया? But keep drinking a lot of water. Hydrate yourself, and if you can swim. अगर आपके बच्चे को स्विमिंग पसंद है, अगर आपके राहु मून है, make them swim. वो अब धीमे धीमे करके वो चला जाएगा, the Rahu impact, because the more water element is there, the less Rahu can completely make their mind barren, because Rahu is, जैसे वो air निकलती है वो पूरा moon barren हो जाता है. It becomes a dry desert. तो पानी पीते रहिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. सर आपने जैसे बोला कि सुबह सनलाइट लेना चाहिए, तो इन लोगों को रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि देर तक ना जागे. या ये दे शुड अवॉइड मून. नींद कहाँ आती है? या गुड. ओके, अनदर पॉइंट. अ पर्सन विद मून राहु वुड टिपिकली हैव डार्क सर्कल्स. सही बात. या हियर वी गो. सो भैया जो भी गोली लेना है, जो भी साइकेट्रिक हेल्प लेना है लीजिए, बट गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट. रात को ज्यादा बाहर मत जाइए. चलें आगे चलते सर, तो बहुत ज्यादा आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑन दिस. हाँ, उड़ा दिया इसने. हाँ, मून शनि. सो मून शनि, मेनी पीपल से ओह ये तो विष योगा है, ये है वो है, बट व्हाट आई लर्नड इज विष को आप उल्टा कर दो, इट बिकम्स शिव. एंड दिस इज नॉट अ बैड योगा टू हैव इट. आई पर्सनली लाइक दिस योगा क्योंकि मैंने इन लोगों को लाइफ में बड़ा कामयाब देखा. दे आर एबल टू ओवर पावर देयर इमोशंस एंड डू द ड्रिल. ये स्यापा डालने नहीं बैठते. And you will find this in the charts of some of the most successful people and some of the greatest sannyasis in the world. प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये इमोशंस को इतना रिप्रेस करता है. ये मून राहु का उल्टा है. मून राहु इज राहु, मून ऑन कोकेन. मून शनि इज मून इन जेल. तो मून बेचारा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कई बार इमोशंस इनके चोक होके रह जाते हैं. और ये इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब 6 बजे माने 6 बजे, 6:05 नहीं. दे मेक वेरी गुड, वेरी टाइमली लीडर्स. और इनका अप्रोच पेसिमिस्टिक होता है लेकिन रैशनल होता है. मून राहु फालतू का पेट स्यापा. मून शनि के भाई ये हो सकता है, और अब उस पर फोकस, पॉजिटिव पे इतना फोकस नहीं करें. बट आई थिंक इन टुडेज डे इट्स गुड. समस्या कहाँ होती है, माता के साथ हमेशा रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो इनको कई बार मैंने देखा है, दे start to feel better when they disown their mother. Clear बहुत हो गया. Mona. And worship of Shiva is very good for them. And of course they should donate to hospitals, orphanages and old age homes. बाकी of course Rudrabhishek and Shani Puja and all that you can do. But it's not all that bad. इसका हल्ला ज्यादा है विष योग का, इसका इम्पैक्ट इतना. बल्कि विष तो निकाल के खत्म किया जा रहा है. हाँ, बल्कि उल्टा हो जाता है. उल्टा हो रहा है, मतलब आपका विष. I'll tell you one thing. Whenever you see शनि चंद्र in the 9th house, वो बंदे का हॉटलाइन है भगवान शिव के साथ. Because शनि is one side of Shiva, चंद्र is other side of Shiva. ये दोनों 9th house में गारंटी शिव भक्त. I have a lady client. She have this combination in Taurus. तो मैंने कहा देवी तुम्हारे तो शिवा नंदी पे बैठे हुए. And she started crying. I just asked, मैंने कहा भाई शिव भक्त हो आपके, तो क्रिकेट नंदी पे सवार. उसका तो रोना निकल गया. So I had to give her 5 minutes to let her love flow out of her mind. And she again was very successful in whatever she was doing. So it's a good yoga to have. You just have to bring a little positivity and a little positive rationality. And these are the people who will do well. एक चीज मैंने देखी है, couple of things. One is increased responsibility. जल्दी बड़े हो जाते हैं. Yes. बहुत बहुत जल्दी.
शनि गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मून पे आ जाती है सारी, एंड दे फील रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. दे जो जेल आपने बोला ना, दैट इज बिकॉज शनि गिव्स बाउंड्रीज, राइट? शनि इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज एंड मून डजंट लाइक बाउंड्रीज. So they always feel wherever, whichever house this happens in, that is where they feel they are jailed about, because there are boundaries all the time. This is why they can feel homeless, because home doesn't actually feel like home. Most people with Saturn in the 4th house, they're like, मेरा घर तो ये है ही नहीं. नहीं, सैटर्न इन द 4th मैंने देखा है, मैं घर के लिए कुछ भी करूंगा, वो अपनी सलीब अपनी माता की और खानदान की लेके चलता है. लेकिन उनका घर नहीं है. सैटर्न इज योर जीसस क्राइस्ट ऑन अ सूली. सैटर्न इज योर सूली, जहां बैठा उस खाने के लिए तुम सूली चढ़ो. सूली, हाँ सही कहा. Saturn in 4th तो बहुत पंगे वाला टॉपिक है. बहुत पंगे वाला है. लेट्स नॉट गो देयर. यार ठीक है, एक दो घंटे निकल जाएंगे. या सीरियसली आई कैन टॉक ऑल नाइट. गो नेक्स्ट. मून केतु. So Moon Ketu is a good yoga to have. People call it Grahan Yoga, but I call it Krishna Yoga. Krishna had this, by the way. Okay. उसको बोलो. अब इसमें मैंने क्या देखा है, इनको इंट्यूशन बड़ा तगड़ा होता है. I have clients with this yoga who can see spirit sitting next to them. Okay, so I wouldn't wish that from anybody, but इनको कुछ भी होने का आभास बड़ी जल्दी होता है. Then they have very sattvic emotions. मतलब ये ऐसे स्यापा नहीं डालते. On the other end, they can feel a little disconnected, a little apathy वाला. For example, and in a way, it's good because too much emotions को हमने glorify कर दिया. For example, जब अभिमन्यु वध हुआ तो अर्जुन बेहोश हो गया, कृष्ण खड़े रहे चिल्ड आउट. एक्साल्टेड मून उसके साथ में केतु, जय माता दी, टेंशन है. भीष्म को मारते हुए अर्जुन रो रहा है. So Krishna is the best that a moon can give you. तो भीष्म को मारते हुए अर्जुन रो रहा है, ये कह रहे और मार दो चार और लगा वहां पर. हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इमोशनल डिटैचमेंट और नमनेस हो जाता है. एंड फॉर सम रीजन इट इज वेरी रेयर. आई हैव सीन सो मेनी मून राहुस, आई हैव सीन वेरी वेरी फ्यू मून केतु. फॉर सम रीजन नहीं होता है. हाँ, इसमें खासियत क्या है, ये इट कैन सेपरेट यू फ्रॉम योर मदर. लॉर्ड कृष्णा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देवकी. And it can separate you from your family. He was separated. Later in life, again, he was separated from Maa Yashoda. Okay. तो वो थोड़ा फैमिली वाला एंगल नहीं चलने देते. मसाब वसुदेव कुटुंबकम. इनके लिए वर्शिपिंग कृष्णा, स्पेशली द पार्थसारथी कृष्णा, the one with Arjun. That's very good because Arjun had a हिला हुआ moon for some reason, I feel. Although कन्या राशि बोलते हैं उसको, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसका मून और सन दोनों डैमेज थे. मून राहु और युधिष्ठिर, आई एम लाइक 90% श्योर ही हैड द 4th हाउस मून राहु. सो ऐसे लोग वर्शिपिंग कृष्णा, फीडिंग काउस, ओके, वर्शिपिंग पार्थसारथी एंड गोपाल कृष्णा इज वेरी गुड. रीडिंग गीता कैन डू गुड फॉर देम. ओके, सो इट्स नॉट अ बैड योगा टू हैव. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, सरप्राइज एंट्री. इसमें मजा आए. So मून राहु, मून शनि में लड़ाई हो रही है. दिस इज द मीम व्हिच आई क्रिएटेड. और मून शुक्र जो है डंडा लेके उनको मारने आ रहे हैं. तुमसे बड़ा डॉन मैं हूं. ये मीम चला था ना जब रिलीज हुई थी गॉडजिला एंड कॉन्ग. तो मून राहु गॉडजिला है, तो मून शनि कॉन्ग है, मून शुक्र इनका बाप है. कई मतलब है, ऑल्दो नॉट एज बैड एज मून राहु, बट यस वी विल फाइंड आउट व्हाई मून शुक्र कैन बी सो डिस्टर्बिंग. So, if you guys know, we were talking about when Lord Chandra eloped with Tara, wife of Brahaspati, and he went and hid at an ashram, and Brahaspati was very angry. पैर पटकते गए इंद्र के पास. I want my wife back. How can we do this? So Indra sent a very strong message कि भाई either you return Devi Tara or there would be a war. चंद्रमा, अब उसकी मर्जी नहीं है तारा को लौटाने की, वो नहीं लौटाएगा. इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट. लेकिन अब करे क्या, वरना इंद्र जो है सारे देवताओं की फौज लेकर चढ़ आएगा. तो एक महामानव थे शुक्राचार्य, उनका हमेशा बृहस्पति से और देवताओं से पंगा चलता था. उनको न्यूज मिले, बोले वेरी गुड, चंद्र को जाके झंडे पे चढ़ा दिया. बोले तू, तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं कैसे लेके जाते हैं. पूरी राक्षस सेना इज एट योर डिस्पोजल, वी विल डिफेंड यू.
सो मून की गलत हरकतों को एंकरेज करके उसको झंडे पे चढ़ा दिया इन्होंने. नाउ ऑल द देवताज एंड दानव वर इन अ वॉर मोड. वो आमने सामने बैटल मोड में आकर के खड़े हो गए. दैट इज व्हेन ब्रह्मा जी एंड एवरीबॉडी हैड टू इंटरफेयर कि क्या पागलपन है, एक छोटी सी जिद के लिए यू वांट अ सेलेस्टियल वॉर, स्टॉप दिस नॉनसेंस. तो मून थोड़ा ग्रजिंगली वाज लाइक ठीक है, तारा को उन्होंने जाने दिया. बट बाय दैट टाइम तारा देवी वाज प्रेग्नेंट एंड बुध वाज बोर्न आउट ऑफ दैट प्रेगनेंसी. ये स्टोरी मैंने पहली बार पढ़ा एंड देन आई स्टार्टेड माय रिसर्च ऑन मून वीनस. माय गुडनेस. और इसमें बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है इसके ऊपर. मून राहु पे आपको खूब मटेरियल मिल जाएगा, मून वीनस पे ज्यादा नहीं मिलेगा. सो दिस इज स्लाइड वेयर आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन. सो वीनस, लाल किताब ये कहती है शुक्र चंद्र की बलि देता, उसको बलि का बकरा बनाता. सो वीनस विल मैनिपुलेट मून, और ये दोनों जहां बैठेंगे वो खाने को बर्बाद कर देंगे, बाढ़ आ जाएगी वहां पे. 9th हाउस शुक्र मून, बाप का है. 7th हाउस शुक्र मून, पति गया, डिवोर्स हो गया. 4th हाउस शुक्र मून, माता का काम लग गया. ये जहां बैठेंगे दे विल रूइन द हाउस. दूसरी चीज क्या है, शुक्र इतने इनके कान में फूंक मारता रहता है चंद्रमा की. ये चंद्रमा बिल्कुल, चंद्रमा ट्राइज टू बिकम शुक्र. सो इनको लाइफ चाहिए जो परपेचुअल हनीमून, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो. ये वो 50 साल के लोगों में मिलेगा तुमको जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है. किसी के चार्ट पे, स्पेशली इन मेंस चार्ट, पूछना साहब एक्स्ट्रा मैरिटल कब चला आपका, ईमानदार होगा तो. इनका नारा है प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो. ये इतने सेल्फ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनको खाना, सोना, सेक्स और प्यार बस. एंड लॉर्ड हेल्प यू अगर ये करके या मीन में. इमोशनली ये बहुत सेल्फिश होते हैं कि भाई सब यहाँ पे मेरे लिए है, मुझे आपको पैसा दे देंगे, बट इमोशनली बड़े सेल्फिश होते हैं. और कहीं ये योग वृश्चिक में हो तो एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ती है ऐसे लोगों के अफेयर्स और बॉडी काउंट. एक बड़ा टिपिकल चीज है इनका तुषार. हाँ, एंड पीपल कैन वाउच फॉर दिस. दे आर क्लीनलीनेस नाजीज. कहीं कोई फटा पुर्जा देख जाए पूरे घर की शामत आ जाती है, मेरे घर में गंदगी किसने कर. क्योंकि दिमाग में इतना क्लटर होता है, ये सारे टाइम घर चमकाते रहो, सफाई कर करके गदर डाल देते, अड़ोसी पड़ोसी घर में झाड़ू लगाते, इनका बस चलो. सो वन एग्जांपल व्हिच आई यूज इज मंथरा एंड कैकेयी. ओके, कैकेयी वाज अ फेयरली गुड वुमन, शी वाज वेरी हैप्पी विद राम बीइंग क्राउन्ड. मंथरा ने आके उसके कान में फूंक मारी. So Venus is a very underrated planet. It can be very destructive. And Moon is the easiest planet to destroy. So Manthara ने आकर के कान में फूंक मारी, and the entire episode happened. Until today, Kekai is sort of condemned. But there is a very redeeming side to it, and that is Lord Ganesha. Like I said, Moon, Shani in the 9th is Shiva. Shukra, मून इन द 9th, बाप शायद होना हो, गणेश उसका बाप बन के बैठा. बिकॉज मून इज शिवा, वीनस इज मां, दे कम टुगेदर, व्हाट डू यू गेट? देयर प्रोजेनी. तो 9th हाउस मून और शुक्र, आई हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग गणेश. गणेशा के साथ हॉटलाइन रहता है. एंड गणेशा इज समबडी हु कैन काम हिम डाउन, क्योंकि उनसे ये दोनों डरते हैं. मून तो बहुत डरता है, बिकॉज देयर इज द लेजेंड व्हेन गणेशा पनिश्ड द मून. सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. सो इसमें वर्शिपिंग गणेशा एंड कृष्णा कैन हेल्प अ लॉट. ऑफ कोर्स कृष्णा हैज अ वीनस मून कनेक्शन. चैरिटी में देना, खासतौर पे बर्फी, आइसक्रीम, रसगुल्ले बांटना बहुत अच्छा रहेगा. फीडिंग काउज इज एन ऑसम रेमेडी फॉर दीज पीपल. नीड और डिजायर में थोड़ा सा अगर अंतर समझ लेंगे कि मेरी नीड क्या है और मेरा डिजायर क्या है, तो थोड़ी मेरी ग्रीड क्या है. हाँ, मेरी ग्रीड क्या है और मेरा नीड क्या है. बिकॉज वेरी ऑफन दीज पीपल फॉल इनटू रिलेशनशिप्स टू फुलफिल अ वेरी सिंपल नीड. मतलब बट दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, तो मतलब अननेसेसरी इतना विनूजन एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं थी. बस खाना टाइम पे खा सकते थे तो काम चल जाता. But yes, So, yeah, please.
it's a tough one, and we did a lot of research on it, and I hope it helps everybody who's watching. सबसे अच्छी बात है सर, ये लोग इसको लोगों को पता नहीं होता. They think that these are both are feminine planets. हाँ, अरे दोनों तो शुभ ग्रह हैं. वाह, शुभ ग्रह, and you're like, अरे, and then और उसके दिमाग में इतना कचर चल रहा है, किसी को नहीं पता. Yes. एक I would just, I don't know if I should. चलो ठीक है, बाद में we'll take it up separately. I don't think I should discuss that a bit. Okay, next slide. So I think we have discussed many of them. For Moon Rahu, Kali Puja is the best thing that you can do. Moon Shani, Shiv Puja, Rudrabhishek helps everyone with a troubled moon. Orphanages और बच्चों को डोनेशन करना, खासतौर पे खाना खिलाना. एंड आई बेग टू टेल एवरीबॉडी, प्लीज किसी भी भिखारी बच्चे को कैश मत दीजिए. आपने एक और बच्चे की किडनैपिंग फंडिंग कर दी वो पैसा देके. आई नेवर गिव कैश टू एनी बेगर. मैं खाना दे दूंगा, पैसा मैं कभी नहीं दूंगा. आपने किसी हाथ कटे अंधे बच्चे को पैसा दिया, आपने एक और की आंखें फुड़वाने की फंडिंग कर दी. प्लीज डोंट डू इट. इफ यू फील वेरी बैड फॉर देम, गिव देम सम फूड, but please don't give them money. मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, and this is my contribution as a कर्क राशि. आपने भिखारी को पैसा दिया, आपने किसी बच्चे की किडनैपिंग को फंड किया, प्लीज ये मत कीजिए. you will get very bad कर्क. सर मैंने पूना में ना क्या किया था, ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट्स होते हैं ना, उसका पूरा एक कार्टन ले लिया था और अपनी कार में रखा हुआ था. थोड़े दिन के बाद ना मैं फेमस हो गया था, मेरे से कोई लेता ही नहीं था कुछ. आते थे, मैं ग्लूकोज निकालता था, मेरे को बोलते नहीं चाहिए, जाओ. So that's how you kill this mafia, यार. I mean, अगर दुनिया में कोई सबसे भयानक इंडस्ट्री, it is this. So बच्चों को अगर आपने कुछ देना, खाना दीजिए, बिस्किट्स रखिए, केक्स रखिए. वो पैकेट वाला है तो ब्रिटानिया वाले, दैट्स वेरी पॉपुलर. क्यों बिस्किट हर बंदा इनको बिस्किट देता है. मैं भी बिस्किट खूब बांटता था. You can also go for somebody who has a कर्क चंद्रमा or a moon Venus especially. You can start with बर्फी. जल्दी खराब भी नहीं होता, यू नो, काजू कतली टाइप्स, और ये बेचारों को मिलते भी नहीं. करेक्ट. डोनेटिंग मिल्क इन एन ऑर्फनेज इज ग्रेट. ओके, एंड ऑफ कोर्स मून मंत्रा इज द वन थिंग व्हिच कीप्स मी सेन, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन क्रेजी. नेक्स्ट स्लाइड तुषार जी. So please, I'll tell you, depression is not mental, it is very much physical. Your chemicals change. I would sleep for 18 hours a day. क्या करोगे आप? हर आदमी मेडिटेट नहीं कर पाता. हर आदमी योगा नहीं कर सकता. राहु तो मेडिटेशन लग गया तो तंद्रा में, नहीं लगा तो खत्म. हाँ, मून केतु कैन डू इट, मून शनि अप टू अ सर्टेन डिग्री, बट हैवी मून कांट मेडिटेट. दे कैन डू अ लॉट ऑफ चैरिटी. दुनिया की ज्यादातर चैरिटी वो हैवी मून वाले लोग चला रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अ टॉरस मून. सो विशाल, यू टेक इट अप. So first one is Lord Krishna, second one is Obama, third person, in case you don't know, is our Vishal. So over to you. Yeah. सही है. तो I think हमने मून टॉरस और स्ट्रॉन्ग मून की बातें तो बहुत करी, बट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज आई वांटेड टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. I have a Taurus moon and what have I seen, and again this is not मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये चीजें बहुत बढ़िया करता हूँ, लेकिन मैंने ओवर द इयर्स अपने आप में ऑब्जर्व करी है, तो आई थॉट आई विल शेयर. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट फर्स्ट बिकॉज दैट इज माय फेवरेट. सो मून टॉरस फोक्स आर बेस्ट इन क्राइसिस. क्राइसिस के समय में, जैसे आपने सर बताया था, कृष्णा अपना रथ जो है बीच में से लेके निकलते रहे, उनको किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ा. I think these guys perform best when it is crisis. Otherwise ये अपने मस्त मौला, इनको फर्क नहीं पड़ता. जहां क्राइसिस होगी they will be very very stable in their thinking, and I have seen that in myself. मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने in-laws में बहुत फेमस हूं. I'll never call anybody, I'll never send a birthday card, I will never wish anybody, forget everybody's birthday. But the moment there is a crisis, I will leave everything I'm doing and I'll stand by them, and I'll complete that crisis. I'll help them out, and then after that again I am gone. तो ये एक ऑब्जर्व करिए मैंने बहुत. देन सेल्फ हीलर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, कि नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन, राइट, दीज फोक्स आर एबल टू हील देमसेल्व्स. स्कॉर्पियो इज अ हीलर इन जनरल. दीज गाइज आर सेल्फ हीलर्स. तो अपने मून को प्लेसिबो दे के
एक सिचुएशन में से निकालना इनको बहुत अच्छी तरह आता है, एंड दैट गिव्स द थर्ड वन फ्रॉम द बॉटम, विच इज कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड माइंड. Whatever the situation around them, they have good amount of control over emotions and mind. Crisis wali, self healing, emotions, control over the emotions and mind, communicators, those I feel were very important, which I have noticed in my own life. And I'll share my two observations. Okay. Anybody with an exalted moon and exalted Mercury, साल में 2.5 दिन के लिए होता है, is going to be super successful in his life. उसके बाकी सारे कोई कहीं बैठे. Some of the richest people in my circle have this combination, and I have this young kid who's very fond of me, and I'm a big admirer of his. वो छोटी सी उम्र is 29. He is running a 7 crore का company and then some multiple companies. And he was into education. And let me tell you how Taurus Moon, I've seen it in action, third party view. So education coaching centers का भट्टा बैठ गया जब कोरोना आया. So while everyone else I met was cribbing about it, wailing about it, ये लड़का क्या किया? He simply said कि कोई बात नहीं, ये ठंडा हुआ ना, कुछ और इससे बड़ा करेंगे. So they are able to, drag their mind from negative to the right side. That I think is the biggest blessings of a Taurus Moon. So वो जो placebo विशाल ने कहा, I have seen that in action and that absolutely works, and that is one thing that we can learn from them. Now we are in the last few minutes, so we'll go to the next slide and we'll see what we can finally suggest. Yeah, next. So we have said seek medical help when necessary. Okay, this is very, very important. Gratitude is the ultimate remedy for Moon and Rahu. अलग अलग इकट्ठे कैसे भी. Gratitude will keep your Moon happy and keep your Rahu satisfied. राहु आपको कैसे दुखी करेगा? आपके नीचे तवा रख देगा, मेरे पास में ये नहीं है, उसको तो जितना खा ले पेट नहीं भरेगा. People under a Rahu dasha or with a Rahu Moon, उनको जितना मिले कम लगता है. So the more you thank the universe for what you have, the better your Moon and Rahu become. Okay. Second thing, ponder over what's good versus ponder over what's bad. Rahu Moon जो खराब हो गया उसको तलते रहेंगे बैठ करके. यादें में सबसे गंदी गंदी वाली चेरी पिक करके रिहर्स करेंगे. So you should focus on what's good in life. Okay. I have a friend जिसने कि मेरे को ये दिया था फंडा, and I was just talking to her. मैंने कहा यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया. She said तेरे को वो टाइम याद है जब तू डिप्रेशन में था? मैंने कहा. बोले उसके मुकाबले आज तू जन्नत में है. नहीं. मैंने कहा बात तो सही. And she said कि हिंदुस्तान का प्रॉब्लम यही है कि इंसान को कुछ भी मिल जाए, 90% चीजें ठीक होगी, लेकिन वो 90% टाइम वो जो 10% खराब है ना, उसका ढोल पीटेगा, उसको लेकर रोता रहेगा. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स इन माय लाइफ. उसके बाद में अनदर थिंग, मून राहु वालों को मैंने अक्सर देखा ये पॉजिटिविटी में घुस जाते, सीक्रेट जैसे ही बकवास पढ़ना शुरू कर देते. अरे अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा. दैट शिट डजंट वर्क. सीक्रेट इज अ स्कैम जॉब. ओके. What you need is rational positive thinking. You need to know the difference between possibility and probability. You need to seek the truth. You don't need to seek positivity or negativity. जो सही है उसको देखो, उसको करो. Another thing, never compare yourself. It encourages your Rahu, it damages your Moon. Right, Tushar? And you need to nurture yourself. No cavalry is coming, no guru is coming, no Modi ji is coming to save you. You have to be your own healer, your own mother. People with all damaged moon people, you have to be your own healer, your own mother. And guys, happiness is temporary, peace is permanent. Duryodhan was happy, Krishna was at peace. So the problem is we seek happiness and we seek it in the things which we cannot control. If we seek peace, we can control a lot, and peace is the best thing that can happen to a moon. Happiness अभी है, अभी नहीं है. Peace is a long-term thing. Most important thing in the world is peace of mind. राजे महाराजे छोड़ के जंगल में गए, भूखे मरे. Buddha, Mahavir, many rajas became rishis seeking peace of mind. So happiness will not last. Peace will last. Sir, happiness is very important for moon. Sir, happiness is externally driven.
You don't have Yeah. control over it. Yeah. Peace is internally driven. You have full control over it. Yes. And Stoic philosophy can help. For anyone with damaged moon, I've read a lot of it, not a lot of time to discuss on it. But yes, and you should worship the suggested deity. Moon Rahu, Kali is your mother. Moon Shani, Shiva is your go-to guy. Moon Ketu, Krishna. Moon Shukra, Ganesha. Okay. And finally, we will talk about the Krishna way. Okay, the man with the best moon ever, and he sort of controlled his planets. That is why we consider him the greatest avatar. So this is Krishna, the Deen Bandhu. गरीब दोस्त आया, उसके चरणों में बैठ गए. Okay. This is Krishna, the पार्थ सारथी. कि चलो अब लड़ाई कर ही लो, अब हो ही जाए. और वहां से भीष्म शंख बजाए तो यहां से कृष्ण जवाब दिए, अर्जुन नहीं दिए, भीम नहीं दिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज कृष्णा दैट आंसर्ड कि हाँ भाई आई एम रेडी, अब तुम लोग आ जाओ. एंड फाइनली जब अर्जुन जो है स्यापे डाल रहा था, मैं अपने दादाजी को नहीं मार सकता, तो रथ का पहिया लेकर चढ़ दौड़े, बोले सारे फसाद की जड़ इसको मार दूंगा मैं. यह जब तक जिंदा है पांडव जीत नहीं सकते, और पांडवों को जीतना होगा. इफ अर्जुन वोंट किल हिम, आई विल किल. तो कहां प्यार दिखाना है, कहां थ्रेट देनी है, कहां रेज देना है. दैट इज व्हाई ही वाज द परफेक्ट अवतार. तो दीन बंधु, पार्थ सारथी, एंड देन युगंधर, जिसने रथ का पहिया पर पूरा युग पलट दिया. कृष्णा इज कॉल्ड युगंधर. नोबडी नोज व्हाई. आई हैव अ थ्योरी. युगंधर इज somebody who carries an entire युगा, जो युग को धरने वाला हो. So till the time Pandavas were getting their rear end kicked by Bhishma, वो सारा कुछ उसी फ्लो में जा रहा था. शुरू से बचपन से दुर्योधन उनको दुखी करता आया. एंड व्हेन कृष्णा रियलाइज कि अगर अब कुछ नहीं किया तो भीष्म सबको खा जाएगा और हर चौराहे पे किसी द्रौपदी की साड़ी खींचेगी. दैट इज व्हेन ही वाज लाइक स्क्रू अर्जुन, ये गीता सुनने के बावजूद भी नहीं माना, अब मुझे ही कुछ करना. देन ही टुक दैट रथ का पहिया, एंड दैट इज व्हेन अर्जुन डिसाइडेड कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा. वहां से द फ्लेवर ऑफ द बैटल चेंज्ड. तो वो एक नई युग की शुरुआत होगी. दैट इज कृष्णा's कॉल्ड युगंधर. सो दैट रेज, कृष्णा's रेज इज नॉट राहु का रेज, हिज रेज इज मून का रेज. यार कितना अन्याय झेलेंगे, कितने दुशासनों को झेलेंगे, कितने शकुनियों को झेलेंगे, कितने द्रौपदियों कपड़े उतरवाएंगे. सो द फर्स्ट हाउस मून केम टू वॉर. So that is the beauty of Krishna and how he used his moon. So with this, we end this session. Thank you guys. Jai Shri Krishna.